Okay, so very good evening, all of you. How's all of you guys? Everyone is here, so we will just start our class. Yeah, I'm also good. Guys, everyone is getting my voice and everyone is here. So we will just start with some magical things. గాలి పెట్టింది తర్వాత దోమలు గుట్టుడు చెమటలు పోసుడు అంటే Guys, everyone is here and everyone is getting my voice properly. Yes, sir. Okay. Okay, so let's start with Node.js. Today we are going to learn about the node, and we will also understand that how node is playing the important role. Okay, so let's start. We have this one workshop. We will create a one directory. Maybe make directory will not work in your system. आपके system में make directory काम नहीं करेगा. तो एक काम करते हैं. हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं one workshop पर. Inside the one workshop, I'm just creating a one folder, and folder is Node.js. And inside this Node.js, we will just create. Now, one bad news you can say, or one good news you can say. Both are same, right? Inside the Node.js or for the Node project, you are not getting any command. Like you can't say that with the help of this command, we will get some boilerplates or we will get some pre-configured Node code. Okay, that bad news. How we can start our Node project? Good news is two magical words will give you the possibility to start your Node.js project. Simple two magical words, and believe me guys, you already know about these two magical words. So just we have to start with it, then see the magic of these two words. How to start with Node project? Simple, it's very easy. First jump on the folder. हम किस folder में काम करने वाले? Node.js folder में काम करने वाले हैं. So my location will be cd Node.js. हमने क्या किया? निर्दोष में change कर दिया. Now how we can start our Node project? Two magical words. Do you know two magical words? Yeah, you know. First magical word is npm. Npm because it's my Node project. So Node package manager. So npm we are going to use. Second magical word is init. Only these two words we are looking for it. With these two words we can start our Node project. Let's see. Now this is package name. आपके project का name क्या है? So my project name is to do app. npm, not npx guys, npm to that, right? Package name Node.js. Sorry, name cannot be longer contain capital, no longer contain capital letters. Okay, to do app. Why it's happening? Leave it. Package name, version name, leave it. Description, it's not required right now. Entry point, yeah, index.js file. This is the entry point from where your project will start. Like for example, as we know guys, कि हमारे पास सीधे हमारे पास to do app है, तो इसका entry point क्या है? Inside the src folder app.js, even index.js also, but we can say for us app.js, right? Same thing for my Node project. Entry point, entry file name is index.js. Test command, leave it blank. Git repository, leave it blank. Keywords, leave it blank. Author you can say who is creating this, so Pratik. License, leave it blank. Everything is okay. Yeah, everything is okay for me right now. So that's it. You started your Node project. हमने क्या किया? सिर्फ एक ही कमांड रन करी, npm init. So it's going to start. Now let's see. हमारे पास Node.js के अंदर क्या है? Package.json file. Inside this package.json file, we have this number of content. And believe me guys, if you have package.json file, it means you have everything. So you have this name, Node.js, version, description, main file is index.js file, scripts and all. That's great. That's great. It's not a big deal. It's very, very simple thing we have and we are using here, right? हमने कुछ भी नहीं किया, npm init को run किया, and now they're asking for the things and we know everything about it, right? So just Control C. So now
यदि हम लोग देखें तो हमारे पास Node.js फोल्डर के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, package.json. It means we already started our Node app. Okay, good. Now, inside this Node.js folder, guys, we will create a one file, and file name will be index.js file. This file will be everything, guys. This file will be everything for our project, because हमने अपने package.json में बोला हुआ है कि मेरी जो मेन फाइल है वो कौन सी फाइल है, index.js. तो आप जो भी कोड स्टार्ट करोगे वो कहां से करोगे, index.js के कोड के अंदर से स्टार्ट करोगे. ठीक है, that's fine, that's fine. Now let's start with some node code. अभी हम समझते हैं Node.js क्या है. Guys, it's your again JavaScript code. Node.js, Node JavaScript. Now, why Node.js is different from the React.js? Okay. Guys, React.js work on the front end. आप जो भी पेज ब्राउजर पे देख पाते हो वो फ्रंट एंड कहलाता है. ठीक है, whatever you are just getting as an output on the front end on the browser is called front end. But who is responsible for serving this front end to you? Who is responsible for this? So my Node.js or my backend thing, it can be Node.js, it can be Python Django, it can be Java, it can be anything else, doesn't matter. But who's responsible for this to represent this front end in front of you? Backend. And that's why we have this Node.js. Node.js is not a front end language, guys. Node.js is my backend language we have. Okay. Now, how to serve it? So for example, how we can serve the pages. Okay, so let's start with it. Node.js is not only for the web application. If you have this concept in your mind that Node.js is only for the web development, no, not right now. Node.js is for everything. You can use for your machine learning. You can use it for deep learning. You can use for your data science, data visualization. You can use for the web development. You can use for your desktop application development, a lot more. You can do with the help of Node.js. But right now, what we are looking for the web development. So for the web development, we have some supporting frameworks, supporting languages or supporting libraries we have. Right? So with the help of Node.js, or to support the Node.js, we have a new library, Express.js. MERN. Full form of the MERN. We are learning here about the MERN, right? So what the full form of the MERN? First thing is MongoDB. MongoDB, right? Till now, we don't know about it. Second thing is E. E stands for Express. Third thing is R. R stands for React.js. And last thing is Node.js. So we already worked on the React.js. Today is the day when we are going to work with Express and Node. Tomorrow will be the day when we work with the MongoDB. So we will finish the complete concept. Okay, that's good. So now, what we are doing here, we are just going to start with the Node.js. So Node.js started, but we need some supporting frameworks, supporting libraries, we can say, right? So how we can do this, how we can do this, or to make it possible to work for you. Okay, great. So we need a library. How we can install the supporting libraries, whatever you're looking for. Simple. npm install. npm init is the command. npm init is the command to start your Node project. npm install. I'm going to install new libraries. मुझे यदि कोई new library चाहिए जो कि Node.js में by default मुझे नहीं मिल पा रही, then how we can use it? npm install. Then मुझे क्या चाहिए? जब से यहाँ पे बात करूँ तो मुझे क्या है? Express is a library, so we need a Express. 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 That's good. npm install Express. When you do this, you will get Node modules folder. Inside this Node module folder, you will get multiple libraries. I told you in the last class. But what we are looking for, Express. So do we have? Yeah. Inside those Node modules, you will get Express.js. Express.js, right? We have. Apart from it, we have some supporting libraries. What are the list like required for my Express project? So it's good, guys. Now everything is ready for you. Everything is ready. Nothing is remain. Just start the coding. We have to start the coding. Okay, great. How we can do this, guys? समझिएगा बात को. if we have to try to understand, हम लोग जब भी React.js पर काम करते हैं तो लाइब्रेरी कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं. Import React from React. Look like this, guys. If I'm right, it's correct, right? We import it. JavaScript जब भी Node.js में लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो पैटर्न इज कंप्लीटली डिफरेंट.
हम लाइब्रेरी जब भी Node.js में इंपोर्ट करेंगे, इट विल वर्क एज अ वेरिएबल. यू हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल. सो const, कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं? एक्सप्रेस. तो कहां स्टोर कर रहे हैं? एक्सप्रेस वेरिएबल में. एंड रिक्वायर, we required something. Node.js says we required something from your site. We are learning both. Concept of coding is Node.js, but using the Express.js. That's why we are learning the both, right? So what we are doing here, if you are looking for the any library inside the Node code, you have to use require. Require of what? Require of Express. That's good. अब बोल सकते हैं कि हमने Express.js का प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया. एंड बिलीव मी गाइस, 5 lines, only 5 lines will give you everything. Just 5 lines of code will give you the access to visit the URL from the browser directly, and you can just trust on me. So now first line is completed here, right? Okay, now Sir. yeah, सर एक्सप्रेस यहाँ पे कर क्या रहा है सर, काम क्या है उसका? समझते हैं. Express.js देखिए समझिएगा. आप लोगों ने कभी पाइथन का नेम सुना है? यस सर. How many of you heard the name Python? ओके ग्रेट. पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. बट यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको पाइथन से वेब एप्लीकेशन बनानी है, आप बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट पाइथन आपके लिए वेब डेवलपमेंट का सपोर्ट नहीं देता डायरेक्टली, ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, वी हैव अ फ्रेमवर्क्स और वी हैव अ लाइब्रेरीज, राइट. सो पाइथन में हमारे पास लाइब्रेरी होती है जेंगो, DJANGO. मे बी आप लोगों ने मूवी का नेम सुना होगा, जेंगो, है ना, इफ आई एम राइट. DJANGO, जेंगो. तो DJANGO में D साइलेंट है, so that's why it's called Django, JANGO, Django, right? तो Django एक फ्रेमवर्क है जो आपके सपोर्ट देता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए. सेम थिंग, आप सभी ने Node.js का नेम सुना हुआ है, या Charlie Tango movie, yeah, it's Django, right? Fine. That's great. So now Node.js आपके लिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करता है, लाइक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज वी हैव विद द Node.js. But plain Node.js is not capable to serve or to work as a server. Server means the thing which is going to serve something. Like for example, here I am working as a server and you are working as a client. Why? Because I'm going to share something. I'm going to serve for you, right? And you're just getting it. Same thing. Node.js, plain Node.js has not a capable, is not enough capable to serve it. We need some third-party libraries, or we need to some frameworks if we understand as a beginner. So if we need, that's why we have this Express. तो आपका कोडिंग पैटर्न तो Node.js का है, बिकॉज Node.js में ही रिक्वायर यूज होता है, ठीक है. लेकिन लाइब्रेरी हम लोग एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस एक आपका फ्रेमवर्क है. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन गाइस. आई एम गेटिंग फ्रॉम द अमृत. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क? समझते हैं. React, हम लोगों ने React.js पे काम किया, ठीक है. What is React.js? React.js is a library or framework. What do you feel? According to me, React.js is a framework, right? Why we can say? Because React.js is enough capable, or like itself is capable to do the things, right? And inside the React.js, if we are going to use, suppose for example, React DOM. So React DOM is a library. Reason is React DOM को चलने के लिए React.js चाहिए ही चाहिए. Without this, it's not possible, right? JavaScript is a programming language. समझिएगा, JavaScript is a programming language. React.js is a framework of JavaScript. नहीं, नहीं, thank you. हाँ, so React.js, like JavaScript is my programming language. React.js is a framework of JavaScript. React.js is a framework of JavaScript, right? And React DOM is a library of React.js. Get a point? So this is the concept of one programming language to framework to library, right? That's why we have this. So that's why if you are talking about the Python, so Python is a programming language. Django is a framework. Django REST framework is a library. Name is Django REST framework, but it's a library.
Get your point, guys, right? So this is all about the things. Sasti? Yeah. So now let's jump to the point. So we have this express. तो हमने एक लाइन का कोड कर लिया. अभी मुझे क्या चाहिए? एक्सप्रेस को स्टार्ट करना. स्टार्ट इन द सेंस आप समझिएगा. So Node and Express both are based on the JavaScript. Yeah, definitely. For JavaScript we have more than 10 frameworks, guys. More than 10 frameworks. Right? We have the Node.js, we have Script.js, we have TypeScript, and these are the patterns. We have Angular.js, we have a Vue.js, we have a Node.js, React.js, and React Native, React 360, and more than. TensorFlow.js. Maybe you didn't heard this name. TensorFlow.js. Name नहीं सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? But believe me, coming years, in the coming future, you are going to learn it, and you are going to be just a fall in love with the TensorFlow.js, right? Okay. Yeah, just a minute. Yeah. Is there anyone? फ्रेमवर्क में सर प्री डिफाइंड कोड होता है ना सर? नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि फ्रेमवर्क में प्री डिफाइंड कोड होता है. सर एक्सप्लेन करेंगे सर होता क्या है उसमें एक्चुअली? मतलब आप क्या जानना चाह रहे हो? और लाइक फ्रेमवर्क में क्या होता है? लाइब्रेरी. देखो, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी लाइक समटाइम यू कैन से आर सेम. ठीक है? फ्रेमवर्क भी आपको कुछ ना कुछ करने के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, लाइब्रेरी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए दे रहे हैं. ठीक है? बट फ्रेमवर्क एक बेस की तरह काम करता है कि विदाउट दिस यू कांट एग्जीक्यूट, यू कांट स्टार्ट. लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल रिएक्ट डोम लाइब्रेरी है, ठीक है, बट रिएक्ट जेएस नहीं है, तब काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो. ठीक है? लेकिन रिएक्ट जेएस है तो आप रिएक्ट डोम पे काम कर सकते हो. ठीक है? ओके, दैट्स गुड. अभी यदि जावास्क्रिप्ट ही नहीं है तो क्या रिएक्ट जेएस का होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. तो जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. रिएक्ट जेएस क्या है? फ्रेमवर्क है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैटर्न पे काम करता है. ठीक है? लेकिन रिएक्ट डोम क्या है? लाइब्रेरी है जो कंप्लीटली रिएक्ट जेएस पर डिपेंडेंट है. अब आप समझ रहे हो किस बात को? ठीक है? रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट नहीं है. रिएक्ट जेएस इटसेल्फ समथिंग, राइट? बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावास्क्रिप्ट है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्रेमवर्क. बट रिएक्ट डोम इज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्ट जेएस. दैट्स व्हाई रिएक्ट डोम इज अ लाइब्रेरी. Get a point? That's the thing. That's the thing we have. यस सर. तो सर ऐसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग-अलग फ्रेमवर्क होते हैं? ओके. Like for example, in Python, if I explain you, right? Because I'm more into Python, Django, React, and Node. I know only these 4 languages, right? I don't have idea about the Java and others, right? Okay. So in Python, Python is programming language. आपने वो भी name सुना है, आपने वो भी name नहीं सुना है, ठीक है? Python programming language है, ठीक है? Django एक library है, but it's a framework. Django एक framework है. Reason is because Django itself is enough capable to do the things, right? To build a complete website without any support. लेकिन यदि मैं बात करूं Django REST फ्रेमवर्क की, तो एक ही लाइब्रेरी है. रीजन इज बिकॉज विदाउट Django उसका कोई भी उसका कोई प्रेजेंस ही नहीं है. लाइक इट्स नॉट प्रेजेंस, right? So this is the difference. Yeah, I'm getting one question. The future is for Python or JavaScript? Actually for both. Yeah, I'm getting the correct answer, right? And yeah, if you are more into the Python, because right now if you go for the job and if you go for the vacancies, right, most of the time you will get the companies are looking for the person who is a good enough into the Python, Django, and React.js. If you know that these 3 things, you can be the like biggest worm, you can say, right? A masterpiece in this IT world, right? Okay, that's all the things are required. Python, Lilith. For the placement test, I'll suggest you Python. But for the job, I'll suggest you Python plus JavaScript. So let's start with next. अभी हमने क्या किया? एक्सप्रेस को यूज कर लिया. अब एक्सप्रेस क्या है? मेरे पास एक लाइब्रेरी है. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐप बनानी. क्या बनाना है? ऐप बनाना है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा? एक ऐप बना लूंगा. CONST const. मल्टीपल एप्स भी हो सकती है एक एप्लीकेशन के अंदर. मैं अभी एक ही ऐप बना रहा हूँ. एंड जो मेरी ऐप है, ये हमारी एक्सप्रेस की ऐप है. It means Node is enough capable to serve more than one server, or to serve more than one server to different servers, right? Now,
guys again थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं. If possible we will just conduct a one class for the placement purpose, for the learning purpose and all, right? Get your point? Okay, so we have this for app equals to express. सिर्फ इतना लिखना है आपको. तो ये express ये है, मतलब यदि आप ये डिफाइन नहीं करोगे तो इस express का कोई भी इंप्रेशन नहीं है. ठीक है ना? तो आपने क्या किया, एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. आप ऐसा समझो, एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, नहीं कंपलसरी नहीं है, यू कैन यूज एनी, राइट? सो नाउ ये हमने बना दिया. नाउ व्हाट आई वांट नेक्स्ट, आई वांट स्टार्ट माय सर्वर. गाइस इट्स इजी. आपको मैं 5 लाइन बोली थी, 3 लाइंस में रेडी हो गया. ठीक है, आई वांट स्टार्ट माय सर्वर. कैसे स्टार्ट करेंगे? ऐप डॉट लिसन. सिंपल. मैं लिसन करने वाला हूं किस पोर्ट को? 3000 पोर्ट को. मैं क्या कर रहा हूं? लिसन कर रहा हूं 3000 पोर्ट को. एंड लिसन करने के बाद मैं प्रिंट भी करने वाला हूं. मैं प्रिंट भी करने वाला हूं. एंड दैट विल बी console.log. आई एम running on port 3000. That's good. So now you can say we have this line of code, right? Just you can say 3 line of code till this point. This is the arrow function. We all guys are aware about it, right? It's not a big deal. So we have this, right? Okay. Now let's start with it. I hope port and 3000, sir. Port number we are using a 3000 port, right? Okay. You can use any other ports also, which like whatever you love, you can just use it. It's not a compulsory thing that you can't use this and you have to use only this and this, right? You can use any port number. Okay, so let's start. npm start. Node.js, missing script. Start. Oh, sorry. It's not start, guys. It's not start. We have to write npm and index.js file. It's here. We are not getting an output. The reason is because here you don't have to use arrow function. You have to use function, normal function ऐसे define होता है. ठीक है ना? So you have to use this normal function. अब ये मुझे रन करते हैं, अभी कुछ नहीं आ रहा है. ये तो bad thing है. Listen on 3000. And we are printing a console.log. App of express we have. And it have to run in night time. That's the problem. Are we on the different port? We have this Node.js, Vector.json, node modules. Everything goes fine. Just a minute, guys. I have to just test it, then I'll just update you. I think we should change in packet.json file. Sorry? Packet.json file changes, I think. No. In start script. We have this script express.js. Start we not declared. That's why we are just using the main index.js file, right? Yes, sir. Just a minute, guys. Let me check. Yeah, it's not working actually, right? Maybe some different problem we have. Oh. Guys, it's just my bad, right? That's what it was not working. It will not be the guys npm index.js. How it will work? Your index.js file is node. Sorry for that, guys, but it's node.js. Now, web server is listening
Yeah, sorry, it should not be, it should be something different. Previous code, I'm running on port 3000. That's good. Get your point, guys, right? Like what was the error? हम लोग क्या mistake कर रहे थे? We was calling npm index.js. npm is not responsible to run the code, right? Node is responsible for to run the code. Okay, great. तो हमने ही कर दिया. Listen, मतलब मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया. अब मेरे ब्राउजर को कुछ कोड चाहिए. मतलब यदि मैं ब्राउजर पर जाऊं, यहाँ पे ब्राउजर पे कहीं है ब्राउजर, यहाँ पर है, ठीक है. और यदि मैं यहाँ पे लिखूं localhost 3000, तो यदि विजिट करता हूं तो मुझे एरर मिल रहा है. मतलब सर्वर तो चल रहा है. यदि आप इसको देखोगे तो आपने सर्वर स्टार्ट किया तो आपका सर्वर तो रन कर रहा है, लेकिन आपको एरर आ रहा है, कैन नॉट गेट स्लैश. दिस इज कि आपने कोई भी यूआरएल अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया कि कोई पर्सन यदि 3000 को विजिट करता है तो मुझे क्या कॉल करना है. गाइस 3 लाइन ऑफ कोड, everything will be in your hand, just more 3 more line. Now how we can do this? We will code here. This concept will be the last. After that we will start here. App dot, अब समझिएगा यहाँ पर मेथड काम करती है. आप समझिएगा गाइस, जैसे आप जब भी facebook.com विजिट करते हो तो आप कौन सी मेथड कॉल करते हो? गेट मेथड कॉल करते हो. क्या करते हो? गेट. Why we are calling the get method? You are telling to your server that I want to get something from your site when I'm just going to visit. Get a point? When you are just going to visit the URL, you will get some data, right? So that get method. So app dot get method में गाइस दो चीजें होती हैं. पहला होता है आपका यूआरएल का नेम. तो सबसे एग्जांपल मैंने इन्वर्टेड में लिया /home लिख दिया, तो मेरी यूआरएल का नेम क्या हो गया? होम. आप विजिट करते हैं ना facebook.com/techsimplus/something like this, right? So this is app.get. मैं कहां विजिट करूंगा? होम पर विजिट करूंगा. जब होम पर विजिट करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न में भेजना है? तो आपको जब भी आप होम पर विजिट करते हो ना, आपको सर्वर से क्लाइंट से दो चीजें मिलती हैं. एक मिलती है रिक्वेस्ट और दूसरा मिलता है रिस्पॉन्स. एंड वी हैव दिस एरो फंक्शन. क्या कर रहा हूं मैं? फिर समझिएगा. हमने क्या कर दिया? हमने यहां पर app dot get मेथड यूज की एंड URL will be home. हमारा URL जो होगा वो होम होगा. एंड आफ्टर दैट वी विल कॉल द एरो फंक्शन, राइट? सो इफ आई जस्ट से यू दैट जस्ट कॉल द एरो फंक्शन, यू नो अबाउट इट, राइट? नाउ अभी लोग क्या करेंगे? मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? एक मिलेगा रिक्वेस्ट, दूसरा मिलेगा रिस्पॉन्स. सो लाइक दिस REQUEST, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. आपको दो चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है? तो रिक्वेस्ट आपके पास आएगी, रिस्पॉन्स आपको करना है. You are going to do the request to me, that's please explain me the express concept once more. So response will be from my side, that whether I will explain you again, otherwise not. But there will be some response from my side. Same thing. If someone is going to visit on the browser, and going to type something /home, then they are sending some request. But they are sending the request, they definitely have to return something response. So we have to use response dot. Now you have these number of possibilities: send, JSON, redirect, render, and destroy, final, and multiple things we have. So what I'm doing here right now, I'm just send what? Send what? Thanks for visiting the Techsimplus. Okay, now समझते हैं. हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं, मुझे मिल रहा can't get. It means this says कि कोई भी URL आपका 3000 पोर्ट पर रन नहीं कर रहा है. But is there anything which is running on the port? Wow. On home also it's not working. It means definitely bad thing we have. Home is not working. Can't get /home. That /home. Just delete this first. App.get and response.send we have. Oh, sorry. That's again my bad every time, right? Whenever you are going to make some changes into the server, into the code, you have to restart your server. So Control C and restart your server. Now, if you visit, there is no output, but if you visit home, you will get thanks for visiting the Techsimplus. And that's called you created your own server and your Node application. Node.js application, and it's running on the back end. It's handling your different URLs. If you're visiting the home, so you can say thanks for the visiting the Techsimplus. You can get multiple URLs. Apart from home, about.
want to know about Accent Plus. That's it, guys. Simple thing we have, right? So want to know. So now if I visit about, there may be spelling mistake. Sorry. Again, we have to start the server. Now, do you want to read from it? Do you want कि हम ऐसा कुछ करें कि मैं जब भी चेंजेस करूं मुझे सर्वर दोबारा से स्टार्ट नहीं करने पड़े? How many of you are really looking for this concept कि मैं जब भी सर्वर में चेंज करूं मुझे सर्वर दोबारा स्टार्ट नहीं करना पड़े? How many of you want it? Just tell me yes or no. Okay, simple. You have to install one more library, NodeMon. NodeMon. You are really going to be fall in love with NodeMon. You all guys, NodeMon. Okay, that's great. Now go for the package.json. Inside this script, delete it. Inside this script, just delete everything and write the command start. And what I want in terms of start, like if anyone is going to click on the start, what I'm looking for. So I'm just looking for NodeMon index.js. It means आप जब भी start को call करोगे, NodeMon run हो जाएगा, and NodeMon will take care about everything. हमने सिर्फ एक कोड लिखा. Now let's see. This time we will not run node index.js. No. अब हम रन करेंगे हमारा universal pattern npm start. Now node index.js and you can say starting the server node index.js and running on the port 3. अभी समझिएगा, मैं कुछ भी changes करूंगा server automatic refresh हो जाएगा. Delete this, save it. Server is going to refresh. If I'm going to jump back, server is going to refresh. So you can say now if you about visit करोगे, so you will get the answer. Want to know about Texan Plus. Even अभी मैं जाता हूं और Texan Plus की spelling change कर देता हूं. Texan Plus. Server फिर से start हो गया. You don't have to restart and refresh the page. You will get the output. How's it, guys? What do you feel? Is it interesting? And till this point, is everything clear for everyone? Yeah, इतना को. हाँ. सर ये कह रहा है. हाँ बताओ. app.listens not a function करके आ रहा है एक. आपने देखो ऐप को एक्सप्रेस पे कॉल किया है क्या? ऐप को एक्सप्रेस लिखा है क्या? मेरे को यस सर. सर वो एक्सप्रेस के बाद पैरेंथेसिस तो नहीं लगाना ना? पैरेंथेसिस लगाना है, कंपलसरी है. const app इक्वल एक्सप्रेस के बाद const app इक्वल टू एक्सप्रेस का पैरेंथेसिस लगाना है ना, नहीं तो वो कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? ओके सर. ओके हो गया. इट्स रनिंग. यस सर. थैंक यू. या दैट्स गुड जज. एक्सक्यूज मी सर. क्या पवन? सर लाइन नंबर 5 से लेके 10 एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज. हम लोग एक काम करें, अभी स्टार्ट करें एक बार फिर से जल्दी से. हाँ सर, थैंक यू सर, एकदम ठीक है. डन ना? डन फॉर ऑल. ओके, सेव इट. वाओ, सब कुछ ही बंद हो गया. चलो स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जल्दी जल्दी. इज देयर एनीवन हु वांट्स टू जस्ट प्ले विद मी एंड हु वांट्स टू जस्ट टेल मी व्हाट आई हैव टू राइट हियर? हाँ सर मैं बोल रहा हूँ ना सर. या पवन, टेल मी. कौन सा? हाँ सर, एक्सप्रेस सर इक्वल टू. ऐसे लिख दूं क्या मैं इसको? ऐसे चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा ना. चलेगा. गुड. हाँ. एंड मैं यहाँ क्या लिखूंगा? रिक्वायर. रिक्वायर के अंदर क्या लिखना है मुझे? सब नहीं एक्सप्रेस. सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, ये थोड़ा समझ नहीं आता है. समझते हैं. देखो const, this is my variable name. I love with this variable name, right? Okay. Now require, आपको कौन सी लाइब्रेरी चाहिए? आपको आपके लिए पेन चाहिए, ठीक है? Now where you are going to hold it, your left hand or right hand doesn't matter. So now require, मुझे क्या चाहिए? Express. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? Express. Will it work? Simple है ना? Now अब इसको भी हम नेम क्या दे देते हैं? मान लो सपोज एग्जांपल इसको मैंने नेम दे दिया सर्वर. क्या नेम दे दिया इसके लिए मैंने? सर्वर. ये मेरा सर्वर है. Now मैं क्या करूंगा? मुझे एक ऐप बनानी है, तो ऐप कैन बी एप्लीकेशन. हाँ सर, एप्लीकेशन. हाँ सर, हो सकता है ना? ठीक है. तो const app इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? सर्वर. एंड सर्वर इज रेडी फॉर मी. नाउ मैं क्या लिखूंगा? app डॉट लिसन. सबसे पहले मेरा काम है कुछ ना कुछ सुनने का, कि जब तक आप सुनोगे नहीं आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to call arrow function. It will नहीं सर, arrow नहीं करना है सर, आपने मना किया सर. नहीं, it will work. That was like my bad, I think, right? ओ अच्छा, हम लोगों ने सर्वर स्टार्ट नहीं किया था, गलत तरीके से सर्वर स्टार्ट किया था, है ना? कमांड वाला. हाँ, I am
running at 3000, is it right? हाँ सर And are you getting this answer? I am running at 3000. मिल गया मुझे आंसर लास्ट में? हाँ सर हाँ है ना, इट्स वर्किंग. ओके, मुझे क्या करना है, किसी ना किसी URL पे तो आप डेफिनेटली विजिट करोगे. तो मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट गेट, हम लोग क्या करेंगे, गेट. गेट मतलब मुझे कुछ चाहिए. ब्राउजर बोलेगा सर्वर से दैट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग, कैन यू गिव मी द आंसर. तो जैसे सर्वर पे आएगा वो क्या पूछेगा, मैं देखना चाह रहा हूं अबाउट के बारे में. और जब अबाउट के बारे में, जब मुझे चाहिए अबाउट, तो डेफिनेटली आई कांट गिव यू द ऑर्डर, आई कैन डू द रिक्वेस्ट. सो इट कैन बी रिक्वेस्ट. यदि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा. सो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मैं क्या सेंड करूंगा, मैं सेंड करूंगा हेलो टू ऑल. सभी के लिए क्लियर हो पा रहा है? अभी सर देखो, हम वो अबाउट क्यों यूज कर रहे हैं सर? ये एक आपका पाथ का नेम है. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कभी टेक्स्ट साइट विजिट किए हैं जिसका या टेक्स्ट प्लस के पेज पर आ गए, आपका textplus.com हो गया. ये इसको आप एज्यूम करो आपका है लोकलहोस्ट 3000 तक है आपका, ठीक है. अभी आप कभी भी सपोज फॉर एग्जांपल, अभी तो कोई ट्रेनिंग चल नहीं रही, वर्कशॉप मान लो, आप किसी वर्कशॉप पे जाते हो तो आपको यूआरएल मिल रहा है ना, मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिएक्ट विद पे इंटीग्रेशन मिल रहा है ना. तो ये यूआरएल सर्वर को आप जब डालोगे तभी मिलेगा. सपोज एग्जांपल मैं इस यूआरएल को पूरे के पूरे को कॉपी करता हूं अच्छा 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 सर और समझ गया यहां डाल देता हूं. अब कोई भी जब इस यूआरएल को विजिट करेगा ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हेलो टू टेक्स्ट प्लस, है ना, हेलो टू ऑल, व्हाटएवर यू आर जस्ट लुकिंग फॉर. ठीक है, सो नाउ ये हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया. अब समझते हैं एक बार इसको करके. सर वो कमांड बताइए ना सर, जो आपका डायरेक्टली वहाँ पे सर्वर रन कर रहा है. पैकेट.json पे जाते हैं, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, अच्छा, चैट बॉक्स में सभी के लिए डाल रहा हूँ. ठीक है, सो जस्ट गो फॉर द चैट बॉक्स एंड पेस्ट इट इनटू योर स्क्रिप्ट को. ठीक है, इतना आप कर लो. ठीक है, नोडमॉन को इंस्टॉल करना है. नोडमॉन को इंस्टॉल कैसे करोगे, कैसे करेंगे नोडमॉन को इंस्टॉल, npm install and my nodemon. मैं इसकी कमांड भी चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ. ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इट, यू ऑल गाइस कैन यूज इट. ठीक है, फाइन, दैट्स इट. सभी के लिए तक अभी तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नाउ अभी जब कोई भी रिक्वेस्ट करेगा इस यूआरएल पर, तो मैं रिस्पॉन्स क्या दूंगा, हेलो टू ऑल. लेट्स ट्राई विद इट. सो कम हियर एंड अबाउट को छोड़ दो और उस पर विजिट करो. मुझे क्या मिल रहा है, हेलो टू ऑल. मतलब हो गया ना, इतना जो आपका पार्ट है वो गया textplus.com. उसके आगे का पार्ट हो गया मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिएक्ट जेएस विद इंटीग्रेशन. आपने जैसे इसको विजिट किया, आपको मिला ना हेलो टू ऑल. कितने स्टूडेंट्स के लिए इस पॉइंट तक सब कुछ क्लियर है? एंड आप यू कैन एज्यूम गाइस, आपने कितने इजीली एक कंप्लीट वेब पेज बना दिया. एक सिंगल यूआरएल आपके पास है. कितने लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मेरे लिए क्लियर है सर, मेरे लिए Okay, great. And any other students, guys? How many of you have clear concept about it? Just send me message. Okay, good, Lalit. Good, Ramesh. Yeah. सर ये पैकेज जो .json वाला फाइल कहाँ पे है? सर node.js का है. Node.js फोल्डर के अंदर है. अब जब भी npm init लिखते हो ना, ये खुद ब खुद बन जाता है. ओके आपको सर. नहीं बनाना पड़ता, खुद ब खुद बनता है ना. सर ये यूआरएल तो हम कुछ भी डाल सकते हैं ना अपनी चॉइस से? आपकी जो चॉइस है. Is it fine? यस सर. Yeah. N number of URLs you have. यस सर. और सर किसी वेबसाइट पर www. कुछ इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है सर, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है. लिखा हुआ है बेटा, देखो इसको मैं कॉपी करूं. यस सर. लिखा ना http कॉलन. ठीक है, यस सर. यस www अभी कंपलसरी नहीं है कि आपको डालना ही है. ठीक है, ओके सर. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, है ना. ये देखो क्या लिखा है, www लिखा हुआ है ना. एक्सेल साइड लिखा नहीं लिखा है. ठीक है, यस. अब यदि मैं यहाँ से www हटा दूं ना, ये लाइक दिस. ठीक है, टेक्स्ट लिखूंगा ना तब भी चलेगा. ओके सर. ठीक है, हो गया. ये पेज मेरा रीलोड हो गया. फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देखो ये आपको उस पे चल रहा है ना. और यदि आप www लिख के भी चलाओगे तब भी चलेगा. ओके सर. ओके. इवन आपने लिख के चलाया और ये देखो आपको मिल रहा है. ठीक है, so both the things are same right now, है ना. Because obviously आपको कोई भी URL www के बिना चल ही नहीं सकता है. ठीक है, ओके. तो आई होप टिल दिस पॉइंट सभी के लिए क्लियर होगा. हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करें. सर क्या कहते हैं, मेरे वो npm स्टार्ट अभी भी नहीं चल रहा. क्या प्रॉब्लम आ रही है? पता नहीं सर, क्या कहते हैं, एरर आ रहे हैं बहुत सारे.
हाँ, नोड के एरर बहुत सारे होते हैं या सो नोड मोड नॉट फाउंड आ रहा है। नोडमोड इंस्टॉल तो करो पहले, npm इंस्टॉल नोडमोड लिखो ना। ओके सर। ऐप क्रैश दिखा रहा है, उसको कैंसिल करो, फिर से स्टार्ट करो, ठीक है, इट विल वर्क। ओके सर। You have to write this script, right? And after that you have to start npm start, it will work, ठीक है। अब हम लोग आगे जंप करें guys, सभी लोग just allow me to move forward, so I'll just work, and this is the point guys, this is a good news for all of you guys। हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट को नोड के प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। This is the amazing thing we are going to learn right now. So are you ready guys? Are you ready for it? To integrate your React.js project with Node.js project. मतलब अभी तक आपको जो टू डू लिस्ट आ रही थी, आपको जो टू डू लिस्ट मिल रही थी, वो फ्रंट एंड पे सेव कर रहे थे। अब हम टू डू लिस्ट बैक एंड पे रखेंगे और React.js बैक एंड से रिक्वेस्ट करेगा कि जितनी भी टू डू लिस्ट आपके पास है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? और बैक एंड सर्वर बोलेगा या आई कैन गिव यू दिस, एंड आपको बैक एंड सर्वर आपको भेजेगा। आर यू रेडी फॉर दिस? सभी लोग इस बात के लिए रेडी हैं? एक काम करता हूं, पहले तो मैं कंसोल को कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। दूसरा, फाइल, न्यू विंडो। अब हम लोग दो प्रोजेक्ट पे साथ में काम करने वाले हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पैरेलली, राइट? तो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट होगा मन वर्कशॉप के अंदर से ही मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, तो मैं उसको भी यहाँ ओपन करने वाला हूँ। ओह, इट्स ऑलरेडी ओपन। तो हम लोग एक काम करने वाले हैं, एक हमारे पास टू डू ऐप का, ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, और नोड जेएस जो है मेरा नोड का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लोग ये काम करते हैं, फाइल, ओपन। हम लोग मन वर्कशॉप से नोड जेएस का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं पहले तो, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ नोड जेएस के प्रोजेक्ट पर आ गए, हमारे पास सारे फोल्डर्स नहीं, हमारे पास क्या है? सिर्फ नोड जेएस का प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइल पर जाते हैं, न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं और एक और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। that will be like file, open, but this time from the desktop we will not, like from the मन workshop we will not open node, we will open to do app। ये मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओपन। तो अभी यदि आप देखोगे तो आपके पास क्या है? इस विंडो में आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है, टू डू ऐप आपने ओपन करके रखी है, और इस विंडो में आपने आपका नोड का प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है, Node.js, ठीक है। तो हमने दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग विंडो में ओपन कर लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग विद इट। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूं, हम लोग 3000 पे नहीं रन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मेरा जो React.js है वो बाय डिफॉल्ट 3000 पे वर्क करता है, तो मुझे Node.js को किसी और पोर्ट पर रन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 5000 पे रन करें। किस पर रन करेंगे हम लोग? 5000। वी आर गोइंग टू रन ऑन द 5000 पोर्ट। Yeah. So now yeah, sorry for that. Just a minute, guys. Okay. Now app.listen 5000 पोर्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, and now let's start npm start। हमने 5000 के पोर्ट पर अपना नोड का सर्वर स्टार्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पर जाते हैं और सेम कमांड लिखेंगे npm start। ओ, हमें फिर से नोड मॉड्यूल चाहिए। कौन मुझे सबसे पहले बताएगा नोड मॉड्यूल कैसे लाया जा सकता है वापस से? What I have to type here? Who will give me the answer? npm I, okay, I'm getting some answers from chat box also। npm I or npm install, both are correct, it's not a problem। बट सर ये तो ऑलरेडी आपके लैपटॉप में था, तो इसमें npm का मॉड्यूल, मतलब इसमें मॉड्यूल्स क्यों नहीं थे? बिकॉज मैंने आपको कल कोड शेयर किया था। अच्छा, आपने वहीं से लिया है? हाँ, वहीं से लिया है, डेफिनेटली, ऑलवेज, ठीक है। तो मैंने आपको डिलीट करके शेयर किया था। मैंने आपको डायरेक्टली शेयर करता तो फिर कैसे होता काम, बताओ? ओके, नाउ हाँ सर। हाँ जतिन सर मेरे कल के कोड, क्या कहते हैं, कल का जो मेरा कोड था उसमें सर वो बटन क्लिक को कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सर कुछ हो ही नहीं रहा है आगे, मतलब
क्या कहते हैं ऑन क्लिक फंक्शन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं ऑन क्लिक का ही कोई दिक्कत है। ठीक है, दिखता है ना? अभी ओके इसको सर। कंटिन्यू करें, ठीक है? ठीक है सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद npm स्टार्ट। हम लोग npm स्टार्ट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी ओपन हुआ जा रहा है और ये भी हमारा मतलब रिएक्ट का सर्वर चलने लगा क्या हमारा? या वी आर हियर। मतलब आप बोल सकते हो कि आप पहुंच गए। नाउ यू विल टाइप समथिंग, क्लिक ऑन ऐड एंड इट विल बी हियर। ओके ग्रेट। बट अभी मुझे क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा इसको और एडवांस करते हैं गाइस। हम यहाँ पे टास्क ऐड तो कर ही पाए, साथ में कुछ टास्क मैं चाहता हूं मैं मेरे डेटाबेस से फैच करूं। डेटाबेस मतलब बैकएंड से फैच करूं। तो कैसे करेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, समझिएगा। बहुत सिंपल सा कनेक्शन है गाइस। आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे, दोनों सर्वर अलग अलग चल रहे हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल आप ऐसे मानो, एक सर्वर मेरे Amazon सर्वर पे रखा हुआ है, दूसरा सर्वर मेरा डिजिटल ओशन पे रखा हुआ है। दोनों एक अलग अलग कंपनी है, ठीक है? एक Amazon एक गूगल, सपोज फॉर एग्जांपल। एक सर्वर मेरा Amazon के सर्वर पे चल रहा है, दूसरा सर्वर मेरा गूगल के सर्वर पे चल रहा है। नाउ मेरे लिए तब भी कंटेंट को एक्सचेंज करना है, मुझे कुछ डेटा यहां से वहां पर भेजना है, फ्रंट एंड भेजना है। तो कैसे करेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल app.get अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एपीआई बना रहे हैं गाइस। गुड न्यूज फॉर यू गाइस, यू विल बी द पर्सन हु इज गोइंग टू लर्न अबाउट डेवलपिंग आवर ओन एपीआईज। हम खुद की एपीआई बनाने वाले हैं, ठीक है? तो एपीआई मुझे बनानी है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा यूआरएल है एंड मेरे यूआरएल का नेम है ऑल टास्क। मेरे यूआरएल का नेम ऑल टास्क, मतलब मुझे सारे के सारे टास्क चाहिए। तो अब क्या करेगा? कोई भी उसको आएगा तो रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करेगा तो मैं रिस्पॉन्स करूंगा। नाउ अब रिक्वेस्ट है तो रिस्पॉन्स करना है मुझे, तो मैं रिस्पॉन्स में क्या करूंगा? मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं। सो फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट ऑल टास्क, ठीक है? बस ये डेटा है, उसमें बहुत सारे टास्क हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास टास्क है टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4 सपोज, ठीक है? बट अभी मैं काम करते इसको डिलीट। अच्छा एक काम करो, इसको रहने दो और कमेंट कर दो। हमने कमेंट कर दिया, ठीक है? अभी हम समझते हैं इसको हमने कोड नहीं किया। अब हम लोग क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे डॉट जेसॉन। जेसॉन एक डेटा फॉर्मेट है गाइस। हम जब भी डेटा को बैकएंड से फ्रंट एंड पर सेंड करते हैं थ्रू द एपीआई, हम जब भी प्लान कर रहे हैं डेटा को फ्रंट एंड से बैकएंड से फ्रंट एंड में सेंड करने के लिए, वी नीड ओनली वन फॉर्मेट नेम इज जेसॉन। जेसॉन मतलब कुछ नहीं, आपका जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट सेंड करोगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट में क्या है? एक की होगी, दूसरी वैल्यू होगी। सो फॉर एग्जांपल मेरी की होगी नेम, तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी प्रतीक। दैट्स गुड। तो आपने की लिख दी, की इज नेम एंड वैल्यू इज प्रतीक। दैट्स इट। यहां पे आपको लिखना है नेम एंड प्रतीक। दैट्स गुड गाइस। फाइनली इतना सा आपका टास्क है। तो कभी भी यदि कोई भी ऑल टास्क को विजिट करेगा तो देखिए क्या होता है। यदि मैं ब्राउजर पे जाऊं और लोकल होस्ट ऑफ 5000, मेरा नोट का सर्वर कहां चल रहा है? 5000 पे चल रहा है। ऑल टास्क, मुझे क्या मिल रहा है? कंटेंट नेम प्रतीक। बट ये कंटेंट मुझे यहां नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कंटेंट यहां नहीं चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग फॉर फ्रॉम द ब्राउजर, आई एम लुकिंग फॉर दिस ऐप। मतलब मैं रिएक्ट की ऐप से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। अब समझना मेरी बात को। मैं फ्रंट एंड से बैक एंड के लिए रिक्वेस्ट कैसे कर सकता हूं जबकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? अभी तो ब्राउजर जानता है, ब्राउजर नोज अबाउट इट कि मैं लोकल होस्ट 5000 लिखूंगा। लोकल 5000 मैंने लिखा और स्लैश करके मैंने ये लगा दिया, तो डायरेक्टली भेज दिया। बट फ्रंट एंड कहीं और रन हो रहा है, बैक एंड कहीं और रन हो रहा है, फ्रंट एंड हैव नो आइडिया अबाउट द बैक एंड, दैट वेयर बैक एंड इज रनिंग, हाउ वी कैन कनेक्ट इट? एंड बैक एंड, फ्रंट एंड इज नॉट अ ब्राउजर, front end is not a browser guys, right? Front end is a code. You are running this on the browser, it's a different concept, different thing, but front end is not a browser. तो मैं फ्रंट एंड से कैसे रिक्वेस्ट सेंड करूं? ये मेरे पास फ्रंट एंड है, टू डू ऐप। मैं क्या चाहता हूं? कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास है index.js। इसी कंपोनेंट के अंदर मैं क्या चाहता हूं? यहां पे तो हम टास्क को हैंडल कर रहे हैं, ऐड न्यू टास्क। मैं एक और फंक्शन बनाना चाह रहा हूं गाइस, const get all tasks from server। मैंने एक फंक्शन बनाया, अब मैं सारे के सारे टास्क
Yeah. So now get all task from server. मुझे सारे पूरे के पूरे टास्क सर्वर से निकालने हैं, ठीक है। Now how we can do this, guys? एक प्री-कॉन्फ़िगर्ड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके थ्रू आप कितना भी डेटा मतलब बैकएंड से या एपीआई से डेटा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ आई एम राइट, यू नो अबाउट इट, व्हाट इट इज, फैच। हम लोगों ने किया हुआ है ना, हम लोगों ने यूजर लिस्ट बनाई, यूजर लिस्ट की प्रोजेक्ट बनाया है ना, ठीक है। तो हम कैसे कॉल करते हैं, फैच एपीआई के थ्रू। करते नहीं करते गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट दैट वी वर्कड ऑन द फैच मेथड? कितने लोगों को फैच मेथड याद है? ओके, so just use the fetch। क्या यूज करेंगे हम लोग? फैच में क्या लिखेंगे? यूआरएल। तो मेरी यूआरएल का नेम क्या है? मेरी यूआरएल का नेम है ये कंबाइंड http:/localhost 5000/localhost। इस यूआरएल पे मैं जब भी विजिट करूंगा तो डॉट लगाएंगे देन, एंड बाकी चीजें हम सबको मालूम है गाइस। हमें एक रिस्पांस मिलेगा, उस रिस्पांस को हमें JSON में कन्वर्ट करना होगा। सो वी आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू JSON एंड अगेन डॉट देन लगाएंगे और देन में लिखेंगे रिस्पांस मिलेगा मुझे फिर से, और उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं कर दूंगा console.log ऑफ रिस्पांस। दैट्स इट। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप बनी बनाई APIs यूज कर रहे थे, राइट? लाइक बिफोर दैट वी वाज फैचिंग द डेटा फ्रॉम द प्री-कॉन्फ़िगर्ड प्री-डेवलप्ड APIs, but right now you are on the stage where you are creating your own API, not pre-configured APIs, right? So you created this API, guys। आप एज्यूम कर सकते हो कितनी इजीली हम लोगों ने एक खुद की API बना ली, जस्ट 2 to 3 लाइन ऑफ कोड। अब देखो तो इतने से कोड से आपके पास खुद का API है, एंड यदि आप इस कोड को डिप्लॉय कर दो, लाइव कर दो सर्वर पर, कोई भी इस API को एक्सेस कर सकता है और उसको नेम में प्रतीक मिल जाएगा, रिस्पांस में उसको हमेशा ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। इट मींस यू कैन एज्यूम दैट हाउ इट्स इजी, इफ यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग इट्स सो इजी। नाउ अभी लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने फैच किया, ये कंटेंट मुझे मिला एंड इस कंटेंट में रिस्पांस एंड ऑल, राइट। अभी लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन कॉल कब होगा, ये फंक्शन जो है वो कब कॉल होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूं, दैट्स इट। मतलब जब भी पेज को लोड करोगे, जब भी पेज को लोड करोगे आपका एक कंटेंट लोड हो जाएगा। एक बार देखते हैं यहां पर आके, रिएक्ट ऐप, लोगों ने रिएक्ट ऐप पे किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पर गए एंड हमें कोई भी एरर नहीं मिला। गाइज अब मैं आपको जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ। क्या यदि आप इस एरर को समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपके फ्रंट एंड को परमिशन ही नहीं मिली बैकएंड को एक्सेस करने की। बैकएंड ने कहा आई डोंट नो अबाउट यू। रीजन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आप एक्सेस कर रहे हो 5000 पोर्ट को। किसे एक्सेस कर रहे हो गाइस? 5000 पोर्ट को। Node.js और Django दे आर वेरी सिक्योर, दे आर वेरी वेरी एडवांसली सिक्योर दे आर, राइट। कोई भी उन्हें इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आप उन्हें अलाउ ना करो। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक्सेस टू फैच एट दिस यूआरएल। आप इस यूआरएल को विजिट कर रहे हो तो क्या बोल रहा है? एक्सेस टू फैच एट दिस यूआरएल फ्रॉम ओरिजिन दिस। आप 5000 ऑल टास्क को विजिट करने की कोशिश कर रहे हो इस यूआरएल से, has been blocked by CORS policy. CORS policy is called cross origin request. Now you can say access control allow origin header is present on the requested resource. Get your point? It means ये क्या बोल रहा है? इसने आपको आंसर किया कि आपने जिस सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है एक्सेस करने के लिए। बोल रहा है कि मेरा ओरिजिनल पोर्ट तो 5000 है मगर आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो मुझे 3000 से, जो कि मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा बिकॉज आई एम रनिंग ऑन द 5000, आई विल नॉट अलाउ यू टू एक्सेस फ्रॉम द 5000 पोर्ट। क्योंकि आप समझो ना बात को, सेम यूआरएल को जब मैं ब्राउजर पे एंटर करा रहा हूं तो वो रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है? बिकॉज इट नोज कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो 5000 पोर्ट से भेज रहे हो तो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। लेकिन आप जब एक एपीआई फैच एपीआई के थ्रू भेज रहे हो तो वो आपको क्या बोल रहे हैं? नॉट अलाउड। तो अब मैं क्या करूं? व्हाट वी हैव टू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, we have to configure our node of express app। express app को configure करना पड़ेगा कि आप किसी भी URL को allow कर सकते हो। it's not compulsory कि मैं हमेशा आपको 5000 से विजिट करूंगा। I can visit you from any URL। how we can do this? आपके लिए एक सिंपल सी एक प्लेन लाइब्रेरी चाहिए, बस आपको 2 लाइन का कोड लिखना है, it will work for you, है ना। so let's definitely you have to ask me what are these 2 lines। so first you have to install this is my node app, no,
दिस माय नोड ऐप। सर्वर को क्लोज करते हैं, सर्वर को हम लोग क्लोज कर देते हैं एंड एक कमांड और लिखेंगे npm install CORS। CORS पॉलिसी की प्रॉब्लम तो हम लोग CORS को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। मैं एक कमांड लिख रहा हूं और आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर भी कर रहा हूं। So if anyone have any problem related to command, so you all guys can copy it, paste it. CORS, enter. npm install CORS। हमने इसको जैसे ही इंस्टॉल किया, जैसे हमने इसको इंस्टॉल किया, हमें सर्वर पे जाना है एंड हमें इंपोर्ट करना है const CORS equals to what we have to do, require of what, require of simple CORS। आप जैसे CORS को इंपोर्ट करोगे, आपके लिए कुछ भी नहीं करना है गाइस, सिंपल सा CORS को अलाउ करना है। आपने CORS को यूज किया, नाउ यू हैव टू अलाउ योर CORS। तब जैसे ही CORS को अलाउ करोगे, इट विल वर्क फॉर एवरी URL। तो कैसे काम करेगा, गेट के पहले एंड ऐप के बाद में आपको लिखना है app.use। आप यूज कर सकते हो CORS को, सो CORS, दैट्स इट। इतना सा लाइन का कोड, आपको सिर्फ ये एक लाइन ऐड करनी है और आपको एक लाइन ऐड करनी है। These 2 lines will allow you to access from any URL। आप किसी भी URL को access कर सकते हो। That's good, that's amazing thing we have। Now हम फिर से सर्वर को स्टार्ट करते हैं। Can we start the server? Yeah, we can start the server and now refresh the page and now you can see I'm getting this output guys। Good news, I'm getting this output name Pratik। and आप इस सर्वर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा because you are not sending, you are not working anything, not sending anything, right? but yeah, यदि आप इस पेज को फिर से रिफ्रेश करते हो आपको प्रतीक मिल जाएगा। अब यदि मैं सर्वर पे जाऊं और प्रतीक को चेंज कर दूं Node.js name से, right? I'm just going to change the name। server is started automatically। now if someone will visit, they will get the Node.js here। Node.js here, it means अब आप fetch कर पा रहे हो अपने कंटेंट को and there is no error। Get your point guys? Good news, you have this content। so apart from fetching the Node.js, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं मेरे सारे के सारे टास्क भेजना चाह रहा हूं। I want just send all the task। so all task and all task में कैसे भेज रहा हूं, all task variable and मेरी की क्या हो जाएगी, की हो जाएगी all tasks। सिंपल। तो all task is my key and all task is my value। अब हम जब भी इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, मुझे देखो क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे है ऑल टास्क एंड ऑल टास्क के अंदर मेरे पास एक एरे जिसमें मैंने ये चारों के चारों टास्क डिफाइन करके रखे हुए हैं। एंड दैट्स गुड न्यूज़ गाइस, नाउ योर वेबसाइट, योर प्रोजेक्ट इज रेडी। यू आर कैपेबल टू गेट द डेटा फ्रॉम द बैक एंड टू द फ्रंट एंड। तो जस्ट बेसिक सिंपल कोड आप देख सकते हो, 15 लाइन का कोड, 15 लाइन का कोड भी नहीं दिया, आप स्पेस को हटा दो तो, है ना, 10 line of code and you are getting your backend server is ready to running for you and just serving the data from the backend to front end। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि फ्रंट एंड जो भी डेटा एक्सेस कर रहा है, इस रिस्पॉन्स में उसको जो भी डेटा मिल रहा है, मुझे उसे यूज करना है। कहां यूज करना है, तो मैं काम करता हूं इन रिस्पॉन्स को यहां पर ऑल टास्क में फीड कर देता हूं। तो कैसे फीड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द console.log, you set all task and inside this all task what you have, inside the set all task you have array, so you just call response dot all tasks। सिंपल, कितना इजी है, response dot all task। और ये जो all task है वो क्या है, all task है आपकी की का नेम, आपने किस की से पास किया, how you are going to pass from the backend। तो backend में मैंने की का नेम यूज किया all task, तो इसको पार करूंगा, इसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, response dot all tasks and ये all tasks आपका ये वाला all task नहीं है, ये आपकी की है जो रिस्पॉन्स के अंदर है। इफ यू कैन चेक, आपको जो क्या मिल रही है यहाँ पे की रिस्पॉन्स, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या चाहिए, ऑल टास्क चाहिए। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऑल टास्क। तो अभी देखो मैजिक, रियली मैजिकल थिंग यू आर गोइंग टू सी हियर। रिफ्रेश द पेज एंड विजिट द रिएक्ट ऐप एंड आई थिंक इट्स नॉट बी मोबाइलेटिक, बट आप देख सकते हो आपको फर्स्ट 4 टास्क बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। जैसे पेज को रीलोड करोगे ना, देखो आपको फर्स्ट 4 टास्क आपको पहले ही मिल जाएंगे। You can see these 4 tasks you have। Get a point guys? अभी हम थोड़ा सा इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। I can understand कि बहुत ज्यादा फास्ट हो गया होगा, हो सकता है, ठीक है, बट नाउ let's go for the revision। समझिएगा, फिर से एक बार समझते, ठीक है। ओके, लेट्स से हमने कुछ भी नहीं किया गाइस, हमने यूआरएल बनाते हैं नोड के अंदर वैसे यूआरएल बनाए हुए हैं, app.get all task
एंड जब भी कोई आपको ऑल टास्क पर रिक्वेस्ट करेगा, मैं ये सारे के सारे टास्क एज अ ऑब्जेक्ट भेज दूंगा। कैसे भेजूंगा? response.json। आपने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने आपको JSON फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कर दिया। सिंपलेस्ट थिंग। व्हाट वाज द गेट पॉइंट गाइस? तो मैंने जैसे ही रिस्पॉन्स किया ऑल टास्क को, जब भी कोई भी पर्सन इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, मुझे यूआरएल मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। अब मुझे इसे एक्सेस करना है, तो मैं रिक्वेस्ट कहां से भेज रहा हूँ? रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ फ्रंट एंड से। हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम है गेट ऑल टास्क फ्रॉम सर्वर। मुझे सारे के सारे टास्क सर्वर से चाहिए। कैसे मिलेंगे मुझे? फैच करूंगा मैं इस पर्टिकुलर यूआरएल को, दैट देन जब ये यूआरएल पूरा का पूरा फैच हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटा लोड हो जाएगा, तब मैं जाऊंगा डॉट देन पर, और देन पे जाने के बाद फिर मैं जाऊंगा देन रिस्पॉन्स पर, अगेन देन एंड सेट ऑल टास्क ऑफ रिस्पॉन्स डॉट ऑल टास्क। अभी रिस्पॉन्स डॉट ऑल टास्क क्यों लिखा? समझते इस बात को। हमने रिस्पॉन्स डॉट ऑल टास्क क्यों लिखा? क्योंकि आप जो कंटेंट भेज रहे हो ना, आप बैकएंड से भेज रहे हो ये ऑब्जेक्ट। अब रिस्पॉन्स के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स के अंदर क्या है आपके पास? ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आपको क्या इंपॉर्टेंट? ऑब्जेक्ट चाहिए पूरा का पूरा, या आपको सिर्फ ऑल टास्क चाहिए? ऑब्वियसली मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये एरे चाहिए है, ना कि मुझे ऑल टास्क। तो मुझे यदि ये एरे चाहिए है तो मैं क्या करूंगा? ऑल टास्क लिखूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे मानूं, ये जो पूरा का पूरा एग्जांपल है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, एक रिस्पॉन्स नेम के वेरिएबल में सेव है। ठीक है। इफ आई जस्ट टेल यू कैन यू गिव मी द ऑल टास्क लिस्ट, तो आप क्या लिखोगे? रिस्पॉन्स डॉट ऑल टास्क, आप ऐसे लिखने वाले हो ना। तो सेम थिंग आपको जो फ्रंट एंड पर आप जो भी रिस्पॉन्स नेम का वेरिएबल देख पा रहे हो, उसमें आपको क्या मिल रहा है? ऑल टास्क का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो आप जैसे ही फ्रंट एंड पर रिस्पॉन्स डॉट ऑल टास्क लिखकर और सेट करते हो, इस सारे के सारे टास्क कहां सेट हो जाते हैं? इस ऑब्जेक्ट में। और जैसे सेट होते हैं रिएक्ट हुक्स के कॉन्सेप्ट से, आपकी लूप चल जाती है विद ऑल टास्क, एंड आपकी जो लूप है वो सारे सारे टास्क आपको प्रिंट करके दे देती है। अब हम थोड़ा सा इसको और डीप में जाते हैं, एक स्टेप मोर, जस्ट लास्ट स्टेप गाइस फॉर टुडेस क्लास, राइट? देन वी विल फिनिश द क्लास। समझिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा गाइस ऑन माय स्क्रीन, जस्ट बी फोकस्ड हियर। हम जब भी पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश किया हमने पेज को, इट्स टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहा है कंटेंट को एक्सेस करने में। इवन इट्स टेकिंग मोर टाइम राइट नाउ। सर्वर इज रनिंग, yeah, server is not running, that's why it's taking up too much of time, right? I have to start my server is not going to start. What's the reason? Now it will reload. Just a minute guys. Guys, right now everything is hanged, or you can say my laptop is hanged. Yeah, so just wait a minute guys, for a minute. नो गाइज, एक्चुअली मैं पैरेलली बहुत सारे टास्क कर रहा हूँ, एंड मेरी सेकंड स्क्रीन पर मोर देन 10 डिफरेंट स्क्रीन्स ओपन है। ठीक है, दैट्स व्हाई मे बी इट कैन हैंग, बट guys, if I am running some laptops, then definitely they will hang. Even before this laptop, that's new laptop I have, like last month I got it, but before that I was also using the Mac one, and I use this, yeah, now I think it's working. I used my previous laptop for 2.5 years or 3 years something, right? And finally it got some problems, so I just sold it. So it's possible that your laptop can be hang and all, right?
Okay, let's start. Task working and go for the localhost 3000. It's working, but it's taking little bit time, right? What I want कि आपका जो टास्क लोडिंग का जो काम है वो बाद में होना चाहिए, पेज मेरा पहले लोड हो जाना चाहिए। अब देखो समझो, मैं फिर से कोई न्यू टास्क ऐड करता हूँ ना, so it will also work, but not going to work here. क्यों नहीं हो रहा है यार? मैं न्यू टास्क ऐड कर रहा हूँ, न्यू टास्क क्यों ऐड नहीं हो रहा है? रीजन इज गाइस, आप जब भी न्यू टास्क ऐड करें, समझिए इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, हमें समझने का ये है ना। आप जब भी न्यू टास्क ऐड कर रहे हो ना, आपका पूरा का पूरा कोड यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा कोड चल रहा है एंडिंग तक। न्यू टास्क लिखते हैं ना, तो क्या होता है, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी कॉल हो जाता है, और जब भी ये कॉल होगा, आपके पूरे के पूरे डेटा को फिर से फैच किया जाएगा और पूरे के पूरे कोड को फिर से रिफ्रेश कर दिया जाएगा उन्हीं टास्क से जो टास्क आपके बैकएंड में डिफाइन। न्यू टास्क ऐड ही नहीं होगा। नाउ हाउ वी कैन रीड फ्रॉम इट? यदि मुझे ऐसा यूज नहीं करना है, आई डोंट हैव टू मच ऑफ टाइम एंड आई डोंट वांट इट, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो फंक्शन है सिर्फ एक ही बार चले, और वो तब चले जब मैं पेज को लोड कर रहा हूं। I want to execute this function only for the one time when I'm going to load my page first time. Done. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है गाइस, समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट, इसे आप बोलेंगे लाइफ साइकिल मेथड। रिएक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल मेथड। यूज इफेक्ट के अंदर आपको कॉल करना है एरो फंक्शन। तो आई डोंट थिंक सो कि आप मुझसे पूछेंगे सर व्हाट इज एरो फंक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन, यू ऑल गाइस नो हाउ वी कैन डिफाइन, सो दैट्स डन, दैट्स इट। नाउ एरो फंक्शन के अंदर आपको डिफाइन करना है ये फंक्शन, मतलब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूं, लेकिन अभी मेरे यूज इफेक्ट को कैसे मालूम चलेगा कि आप इसे सिर्फ एक ही बार कॉल करना चाह रहे हो, ना कि हर बार? क्योंकि समझिएगा, यदि मैं इसको सेव करूं किया और यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को, आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश माय पेज, इट्स गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम, if I'm right, yeah, server is running. It's taking too much of time, even it don't have to take. We have this. Now, if I just type something, it will not add. It's not going to add. The reason is because अभी भी आपका एक कोड है ना, हर बार चल रहा है, हर बार रन हो रहा है। अब कैसे मालूम चलेगा मेरे यूज स्टेट को कि मुझे सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होना है? आप उससे बोलो ब्लैंक एरे। नाउ ब्लैंक एरे क्या करेगा? ब्लैंक एरे रिएक्ट की यूज स्टेट को बताएगा दैट यू विल एग्जीक्यूट ओनली वंस व्हेन पेज इज गोइंग टू लोड फर्स्ट टाइम, नॉट ऑल द टाइम। तो अभी फंक्शन से कितनी बार कॉल होगा? एक ही बार कॉल होगा, गेट ऑल टास्क फ्रॉम सर्वर। अब समझिएगा, अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग जो है, आप यदि आई लव पाइथन लिख के ऐड करते हो तो ऐड भी हो जाएगा। आई लव पाइथन इज हियर, आई लव React.js, मतलब जितने भी टास्क हैं आपके सर्वर से वो भी आपको मिल पा रहे हैं, और आप अभी जो न्यू टास्क ऐड कर रहे हो आपको वो भी यहाँ पे देख पा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द fetching the data from the back end to front end and using it. Here you can say you are now you are enough capable to build your own APIs. हमने बैकएंड में Node.js के थ्रू खुद का एक API मेथड बनाया ऑल टास्क का, एंड जब भी कोई भी ऑल टास्क मेथड को कॉल करेगा they will get this data into the response. Get your point guys? So guys, how many of you have the clear concept about it? कितने लोगों के लिए ये सारा concept clear है? किसी के लिए भी कोई भी doubt यहाँ तक? Guys, anyone have any doubt till this point? Just please let me know. सभी के लिए clear हो पा रहा है क्या? Whatever we discussed today? सर अगर क्या कहते हैं बैकएंड में भी अगर ये सारे टास्क भी ऐड करने हो फिर क्या करेंगे? ये हम कल करेंगे। ओके ठीक है ना? और सर वो मेरी एक जो प्रॉब्लम थी वो बता दो, अगर ये अब क्लास खत्म कर जाओ तो
हाँ, definitely. Okay, fine guys. So it's enough for today. आज हम लोग इतना ही करने वाले हैं, ठीक है? And I'll share the code instantly. And for video, sorry for that guys, but I'll just really busy, so unable to share. But yeah, I'll just try to share by today, right? Yeah. How to start the node mon? Simple. Just Control C. npm start. And npm start, you have to configure this. You have to configure the package.json file. तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा आपको, है ना? So you don't have to go. Tomorrow we are going to integrate with the database. हमने MERN में से 3 चीजें कर ली. M छोड़कर सब कुछ कर लिया. REN तक हम कर चुके हैं. React, Node and Express we covered, but Mongoose तक हमने अभी टच नहीं किया. MongoDB के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं. So what we will do tomorrow, we will integrate our MongoDB data. Try to integrate and try to store all the tasks. हमारे पास जितने भी टास्क बैकएंड में हैं उन सभी को फ्रंट एंड में फ्रंट एंड में है उन सभी को हम बैकएंड में स्टोर करेंगे. एंड नेक्स्ट जैसे अभी क्या होता है, अभी मैंने कोई भी टास्क लिखा आई लव पाइथन एंड अभी पेज रिफ्रेश किया, गायब हो गया ना. नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम आपके पास आई लव पाइथन भी होगा, बाकी चारों के चारों होंगे, ठीक है? सो दैट्स द थिंग वी आर जस्ट लुकिंग फॉर इट. वी विल डू दिस. npm install course. Simple. npm install course. Install your course. Simple. And now if you have any problem, आपको कुछ भी नहीं करना है guys, कुछ भी नहीं करना. मैं आपको कोर्स शेयर करूंगा. आपको सिर्फ नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा. आप करंट फोल्डर पर आइएगा और सिर्फ आपको एक ही मैजिकल कमांड लिखनी है, वो है npm i. जितनी भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी खुद ब खुद आ जाएंगी. रिमेन कोर्स आपके पास पहले से रहेगा, आप उसको रन कर सकते हो. सर्वर भी रन कर सकते हो, फ्रंट एंड भी रन कर सकते हो. तो फ्रंट एंड का कंप्लीट कोड आपके पास है. जो भी अपग्रेडेशन है मैं अपडेट करूंगा अभी, ठीक है? एंड फॉर द बैक एंड वी विल शेयर द कोड, ठीक है? या वी विल प्लान फॉर इट कि हम लोग टास्क को रिमूव कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं. इफ यू आर प्लानिंग फॉर इट, राइट? And it means deleting the task. We will do this. And finally, so maybe most probably tomorrow will be the last day. Tomorrow will be the last day for our training or for our program. And if it happens that tomorrow will not be the last day, then day after tomorrow, like by Saturday, we will complete it. Fine. So fine guys, if anyone have any doubt, they can stay here. Otherwise you all guys can leave it. It's not compulsory that you have to be here, right? So thanks to be here guys. Bye bye. Have a good night. See you tomorrow. Yeah. So now let's start with the doubt session. So how many of you have any doubt? Just start with a one by one. सर मुझे स्क्रीन